الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے سننے سنانے سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ الیک والی بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ کوئی اور محفل نہیں ہے کہ جس میں جس طرح سے آپ چاہیں چلے آئیں۔ یہ دوسری محفلوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے طبیعت میں آئے ویسے چلے آئیں۔ یہ میلاد النبی کی محفل ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی محفل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ حالت اس طرح سے ہماری ہو چکی ہے کہ ہم محفل میلاد میں آتے ہیں تو ایک ٹوپی بھی ہمیں نہیں مل پاتی کہ ہم رکھ کے چلے آئیں۔ گھر سے چلتے ہیں چلو جوابی قوالی ہے، جیسے وہاں واہ واہ کرنا ہے خالی، چاہے جیسے لنگوٹی پہنے چلے آؤ، چھٹی پہنے چلے آؤ، چڈھا پہنے چلے آؤ، جیسے طبیعت ہے ویسے چلی آؤ۔ ہاں یہ میلاد النبی کی محفل ہے، اور یہ انہی سب کا حال برا ہے جو ابھی کل تک یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے، یہ بھی ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ جھوٹے لوگ جو جھوٹ کیول خالی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں سچائی کہیں کچھ ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ کون نبی کے نام پہ جان دے دے گا جو 25 گرام کی ٹوپی سر کے اوپر برداشت نہیں کر پا رہی تو 2 کلو کی تلوار کیسے سر کے اوپر وہ جھیل لے گی؟ ہاں بتاؤ، اتنا حال برا ہے کہ محفلوں میں آتے ہیں، کم سے کم یہ جان لیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ 1000 بار مشک اور گلاب سے کلی کریں اور پھر رسول اللہ کا ذکر کریں تو یہ بے ادبی نہیں، یہ کمال بے ادبی، یعنی یہ بڑی بے ادبی ہوگی۔ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ وہ امتی ہیں اس وجہ سے، ورنہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھسے ہیں، گناہوں کی محفلوں کو ہم عام کرتے رہتے ہیں۔ نبی کا کہاں، نبی کا ذکر کہاں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ نبی کا ہم تذکرہ کریں۔ یہ بس یہ جان لیں کہ اللہ کا فضل ہے، رب کا کرم ہے کہ جیسے بھی ہیں نبی کے امتی ہیں اور نبی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی دینی محفل میں جائیں، مجلس میں جائیں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی آپ ضعیف لوگوں کو دیکھیں گے، بوڑھے لوگوں کو دیکھیں گے، اگر ٹوپی نہیں ہے تو موچھا سر پہ باندھ لیتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سکھایا گیا ہے ان کو کہ محفل میں ننگے سر نہیں جایا جاتا، ذکر اذکار جہاں ہوتے ہیں وہاں من چاہے نہیں بیٹھا جاتا، طبیعت چاہے کہ جس طرح سے ہم جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں ایسے جانا چاہیے، سر بھی ڈھکا ہو، ہم وضو سے بھی ہوں، خوشبو بھی آپ دیکھیے اکثر محفلوں میں خوشبو لگائی جاتی، کیوں لگائی جاتی؟ اس وجہ سے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، ماحول خوشبودار بنا دیا جائے، خوشبو اس وجہ سے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم آ رہے ہیں تو کم سے کم یہیں کی خالی بات نہیں کہ یہیں آپ اسی محفل میں آئے تو ربیع اول کی 14 تاریخ کو جب آپ آئیں تو ایسے آئیں، باقی جہاں دوسری جگہ جائیں تو چاہے جیسے جائیں، ایسا نہیں ہے۔
जहां भी जाएं अदब से जाएं। पढ़े दुरूद पाक पढ़े तो मैं चंद बातें अर्ज कर दूं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलतल व बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप सैयद अहमद मियां साहब क़िबला से झंडे के ताल्लुक से आप समाअत कर रहे थे, झंडे के बारे में आप सुन रहे थे, झंडे के बारे में ये बता रहे थे कि देखो सियासी झंडा कोई लगाता है तो उसकी जिस पार्टी से उसका ताल्लुक होता है तो उसी पार्टी का वो झंडा भी लगाता है। फिर वो झंडा से देख के ये अंदाजा लगता है कि ये किस पार्टी का सपोर्टर है। बिला शुबहा वैसे ही रबीउन नूर शरीफ में उम्मत खजरा की निस्बत से जब हरा झंडा हम लगाते हैं तो वो हमारे अकीदे का इजहार करता है। ये झंडा कोई हमने अपने घर से इजाद नहीं किया है। रूहुल अमीन जिब्रील अमीन नबी के मिलाद के मौके पर झंडा लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और एक मशरिक में लगा देते हैं, एक मगरिब में लगा देते हैं, एक काबतुल्लाह पर फहरा देते हैं। ये कौन? ये रूहुल अमीन। अब सवाल ये पैदा होता है क्या जिब्रील अमीन अपनी तरफ से ये सारे काम कर रहे हैं? तो पता चलेगा कि नहीं, अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो कहां से झंडे ला रहे हैं? वो जन्नती झंडा ला रहे हैं। सिमतों में लगा दिया, काबे में फहरा दिया। ये जिब्रील अमीन का तरीका है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन ने मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त लगाया। जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा से को अलविदा कह के मदीने मुनव्वरा का सफर किया और मदीने मुनव्वरा का जब सफर किया मदीने वालों को मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह की आमद हो रही है। अच्छा एक चीज बताएं कि सबका ननिहाल और ददिहाल होता है, रसूलुल्लाह का भी तो ननिहाल और ददिहाल था कि नहीं था? जब सबका ननिहाल और ददिहाल होता है तो मेरे नबी का ननिहाल और ददिहाल नहीं था? बताओ रसूलुल्लाह का ददिहाल कहां का था और ननिहाल कहां का था? मेरे नबी का ददिहाल मक्के का था और ननिहाल मदीने का था। मदीने मुनव्वरा का ननिहाल था मेरे नबी का। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा जा रहे, मदीने वालों को खबर हो चुकी है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है, रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। कुछ लोगों को ये खल गया कि आएंगे तो अपने मजहब का ऐलान करेंगे, अपने मजहब का प्रचार करेंगे। पास के कबीले के 17 लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो उनको मदीने पहुंचने ना दिया जाए, मदीने में ही रोक दिया जाए। उस रास्ते पर आके खड़े हो गए जिस रास्ते से मदीने मुनव्वरा जाया जाता है। ये 17 लोग थे, इंतजार कर रहे थे कि आए और यहीं पे उन्हें निपटा दिया जाए, यहीं पे शहीद कर दिया जाए। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी जब नबी नहीं रहेंगे। तो इसको मोटरसाइकिल वाले को बुलवा दे, पहले तुम लोग चूम ले। मोटरसाइकिल नहीं देखे हो ना, चूम ले मोटरसाइकिल पहले जाके। हाँ कभी नहीं देखे तो देख लिया भैया, मोटरसाइकिल लिया बीच में, इन सबके पास से आगे आगे ले जाओ। ये लोग कम से कम मोटरसाइकिल नहीं देखे तो ये चूम ले इसको मोटरसाइकिल, है ना। हाँ कभी मोटरसाइकिल नहीं देखे हैं ये सब। अब राह घुमा दो आगे आगे। लखनऊ में एक बुजुर्ग हजरत अब्दुर्रहमान सिंधी, सैयद अब्दुर्रहमान सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना। हजरत
सैयद अब्दुल रहमान सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जब उनका इंतकाल हुआ, जनाजा बहुत चाहने वाले लखनऊ में थे। जब उनका जनाजा तैयार हुआ तो उनकी जनाजे की चारपाई में बांस बांधे गए, इतना मजमा था उसमें। और उसके बाद जनाजा जब पढ़ा गया, और एक की ये चाहत थी कि हम कंधा लगाएं, मजमा बहुत सादा था, बहुत भीड़ थी। और हजरत सैयद अब्दुल रहमान सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की करामत जाहिर होती है कि वो जनाजा खुद ही उठता है और पूरी चारपाई के साथ सब बनाए, सब खड़े थे, सबके आगे से निकल रही थी और सब हाथ लगाए ले रहे थे, हाथ लगाए ले रहे थे। सब तरफ से घूमा जनाजा और घूम के आगे रख जाता है। आप जरा सोचे, मिलादुन नबी के महफिल में आए हैं, जैसे आसमान से कोई सितारा उतर रहा है जो देख रहे हो। अरे मोटरसाइकिल नहीं देखा है अब तक ऐसी। अरे हाल ये महफिल मिलादुन नबी की हाल की जो है महफिल मिलादुन नबी के बारे में आप जरा देखें, इसमें इधर उधर करें, ये आपका दखल नहीं है। अपना मुहासबा करें कि हम हैं क्या और हमारे मामलात क्या है, मामलात क्या। सुनो, गौर से पढ़ो दुरूद शरीफ तो आप सुन लो, सुनो, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैक व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब नमाज नाजिल होती है, नमाज फर्ज की गई, शैतान रोने लगा, दहाड़े मार मार के रो रहा है, चीख मार मार के रो रहा है। तमाम चेले इकट्ठा हो गए, आकर पूछा, मेरे उस्ताद रो क्यों रहे हो? कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों पर नमाज फर्ज कर दी है, अब ये नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह उनको बख्श देगा, उनके गुनाह माफ कर देगा, जन्नत के हकदार हो जाएंगे। कहा तो क्या हुआ? अरे बुद्धुओं, फिर हमारा काम ही क्या रह जाएगा, हमारा क्या काम रह जाएगा? कहा फिर क्या करना चाहिए? तो इब्लीस ने कहा कि एक तो पहले इनको नमाज न पढ़ने दो, इनको नमाज से गाफिल रखो। तमाम चेलों ने कहा नमाज से इनको दूर रखो, पास रहे, ये सब दूर रहे, नमाज रह पड़ेंगे। इब्लीस ने कहा नहीं, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो नमाज नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। कहा तब तो कहा कि नमाज नहीं छोड़ेंगे तो नमाज में ही इनको हम भटकाएंगे। ये नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे आगे देखो, ये नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे दाएं देखो, ये नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे बाएं देखो। जी ये पढ़ रहे हैं नमाज, बगल से कोई जा रहा तो देख रहे हैं कौन जा रहा है। हाँ, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज का हाल है, देख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं इधर और देख रहे हैं उधर कि कौन आ रहा है। अरे तुम दुआ मांग रहे कि पीछे की तरफ देख रहे हो? तुम नमाज पढ़ रहे कि सामने देख रहे हो? तुम नमाज पढ़ रहे कि ऊपर की तरफ देख रहे हो? पता चला कि नमाज जैसी इबादत में शैतान नमाज नहीं पढ़ने देता, ज़हन को भटकाया करता है। ये मिलादुन नबी की महफिल है, क्या शैतान छोड़ देगा? छोड़ेगा नहीं, बल्कि ज़हन को भटकाएगा कि सही बात सुन न पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादुन नबी, नारे वफ़ादार, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप सोचो जरा, आओ जरा, एक अल्लाह के वली, ज़हन से बात निकली, अल्लाह के वली बैठे बच्चों को पढ़ा रहे थे। हाथी का रंग कैसा होता है मालूम है? हाथी अपने वहां जो पाया जाता है, यहाँ काला पाया जाता है, काले रंग का होता है, लेकिन वहां एक दिन हाथी निकला तो सफेद हाथी निकला।
नहीं, जो परेशान करेगी इसमें स्टेज के चारों कोनों पे बैठा दो। जो ज्यादा पाजी बना कि स्टेज के चारों कोनों पे इन सबको बैठा लो, ये बैठे रहेंगे। जैसे झांकियां बनाई जाती है ना तो कबूतर बैठा दिए जाते हैं, तो ये रात भर बैठे रहते, वैसे इनको भी बैठा दो, ये बैठे रहेंगे, देखे रहेंगे कुटुरगुम बैठा दो इन सबको, ऊपर बैठे रहे उतनी देर, ये देखते रहेंगे। पढ़े दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं पढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैका व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो पढ़ा रहे थे, सफेद हाथी निकला, सारे बच्चे दर्जे से भाग के सफेद हाथी देखने के लिए दौड़े। सफेद हाथी, एक बच्चा नहीं उठा, एक बैठा रहा। उस्ताद ने पूछा कि बच्चे तुम नहीं जा रहे देखने? कहा हजरत मैं हाथी देखने थोड़े आया है, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, हाथी देखने नहीं आया। ज़हन ये होना चाहिए कि हम मिलादुन नबी की महफिल में आए हैं। गदहा निकले तो गदहा देखने लगोगे, गदहा ही कभी नहीं देखा तुमने? अजीब सोच की बात है। ज़हन को हासिल करो। साल में एक महफिल होती है, उसमें अरे कम से कम अपना ज़हन खराब करते हो, सामने वाले का भी बिगाड़ देते हो। अल्लाह महफूज रखे। जब भी महफिल में रहें, आइए नमाज के बारे में देख लिया जाए। हमारे यहाँ, हाँ मैं बता रहा था आपसे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। 17 लोग थे, वो आ गए मदीने के रास्ते में कि रसूलुल्लाह की आमद हो रही है और नबी जब जाएंगे मदीने में तो वहां अपने मजहब का प्रचार कर देंगे और हमारे मजहब का जो है रद्द हो जाएगा, तो इनको यही निपटा दिया जाए रास्ते में, हम मदीने ये पहुंचने ना पाए। 17 लोग थे, वो सब आए, बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। रसूलुल्लाह का काफिला आया और मदीने को जा रहा है। वो 17 लोग रसूलुल्लाह पर हमला करने के लिए सामने आए। जब मेरे नबी के चेहरे को देखा तो कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ का मुझे साथ ले लो। कि है रस्ते में जा बजा थाने वाले, है रस्ते में जा बजा थाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि है रस्ते में जा बजा थाने वाले मेरे नबी के कदमों में गिर जाते हैं, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपका दाखिला इस तरह से मदीने में नहीं होगा। अपनी पगड़ियों को खोल लिया, भाले में बांधा, झंडा बनाया, हवा में लहराया, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मदीने में आपका दाखिला बड़ी शान से होगा। ये पहला जुलूस मोहम्मदी है जिसमें बनफ्से नफीस मेरे नबी को शरीक है। झंडा लहराया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है, हम मदीने में जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कार की आमद, कार की आमद।